Namaskar and good afternoon to all the viewers uh, to this special program on re-registration for July 2022 session. Learners, as you're all aware, particularly those who have registered for annual programs like master's degree, bachelor's degree, and semester-based programs like BCA, MCA, and MBA, they have to register for the next cycle in advance. And this is something which is an important exercise which has to be undertaken because before the commencement of the session, the re-registration process starts, and it is for all the learners pursuing master's degree or bachelor's degree that they have to initiate the process of the re-registration. And that is why this session is being organized just to impress upon all the present learners, those who are pursuing different programs of more than 1 year duration, that is masters, bachelors, or semester based programs, that they must do it. Going by the number, of course, we are expecting around close to about 40,000 odd learners who are likely to register for the next cycle beginning from July 2022. And the response is still not picking up. Of course, in due course of time, it will shortly pick up. And everything has been made online. Just as you took admission at the time of fresh admission for the program of your study, whether it was masters in commerce or masters in economics or political science, sociology, or bachelors in honors of a particular discipline or general, or as a matter of fact, BCA program, MCA program, MBA program. So all the learners, those who have to go to the next cycle, they have to enroll themselves for the concerned academic cycle, that is July 2022, in advance. And this is what is the exercise of the re-registration. For students, those who have already registered earlier in the re-registration, of course, they are aware of the fact and they are in the know of it. But still, we deemed it fit that let us have a special session. Let us have a special session on this so that we are at least informing all our करंटली एनरोल्ड लर्नर्स जो इस समय एनरोल्ड हैं, जो विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश पा चुके हैं और अगले सत्र के लिए वो एलिजिबल हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, दे मस्ट री रजिस्टर देमसेल्व्स. और ये प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने मई के तीसरे सप्ताह में शुरू कर दी थी. इफेक्टिवली 20 तारीख से ये शुरुआत हो चुकी है और इसमें बहुत सरल है. इसके अंदर कोई और विशेष अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होगा. केवल और केवल जो पहली बार री रजिस्टर करेंगे उनको थोड़ा सा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करेंगे, वो अपने को रजिस्टर करेंगे और आपका पासवर्ड जनरेट होगा. उस पासवर्ड के माध्यम से आप अपने पोर्टल तक पहुंच पाएंगे और अपना डिटेल देख करके देन यू कैन go for re-registration. This is only for the students, those who are going to the next semester or next year immediately after the fresh admission. Immediately after the fresh admission. Otherwise, बाकी जितने भी छात्र हैं जो कि पहले रजिस्टर कर चुके हैं, say for example students pursuing bachelor's degree and now they have to register for third year, तो उनके लिए ये एक प्रक्रिया वो पहले कर चुके हैं, उन्हें मालूम है, उनके संज्ञान में है. तो सिंपली उनको अपना यूजर आईडी जो कि उनका एनरोलमेंट नंबर है और पासवर्ड जो उनको पहले दिया गया है, जनरेट हो गया है, वो उसके माध्यम से वो लॉगिन करके वो अपने को रजिस्टर कर सकते हैं. लेकिन जो पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो पहली बार रजिस्टर करेंगे लर्नर्स, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले वो रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे जिसमें कि उनका यूजर आईडी
तो वही रहेगा, पासवर्ड उनका जनरेट किया जाएगा और उस पासवर्ड के माध्यम से they can proceed further for re-registering to the next cycle. This is something which is very very important. और इसमें जितने भी स्टूडेंट जो जुलाई 2021 में रजिस्टर हुए थे फॉर ऑल बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, उनके लिए ये टाइम है और ये स्टूडेंट्स को हम लोग समय समय पे सूचित भी करते रहते हैं, एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जिससे कि वो अपना समय रहते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करा लें। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में, और इसी प्रकार से जनवरी सत्र में जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, प्लीज रिमेंबर ओनली द स्टूडेंट्स हु आर semester based programs, that is BCA, MCA and MBA, and were registered in January 2022, they are eligible for the July cycle. Student registered in July 2021 will be completing their first year or 1 year in June 2022, उनको रजिस्टर करना है। और जो जनवरी सत्र में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए जिनका प्रवेश हुआ है, चाहे वो बीसीए है या एमसीए है या एमबीए है, उनको वो जुलाई सत्र के लिए करना है। उनके अलावा कोई अन्य विद्यार्थी जनवरी सत्र का इसमें नहीं करेगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये संशय होता है और ये सवाल उठते हैं कि हमारी परीक्षा अभी हुई नहीं है। जून की जो परीक्षा होनी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म एग्जामिनेशन या सत्रांत परीक्षा, उसकी एक संभावित तारीख हम लोगों ने निश्चित कर ली है, विच विल बी जुलाई। तो परीक्षा आपका अपने समय से अपने शेड्यूल के अनुरूप होगी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट you have to take care of at least the registration formality, because that is something which is very very important. और उसको अगर आप लोग समय रहते हुए कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो आपको नॉर्मली हो जाती हैं, वो आप लोग उसके लिए अपने को तैयार कर लेंगे। कोई भी चीज समय पे अगर हो जाती है तो बहुत ठीक रहता है, और वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनके जो भी अभिभावक हैं या गार्जियंस हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, और कंफ्यूजन भी कम रहती है, तो ऑल स्टूडेंट्स दोज हु आर रजिस्टर्ड इन जनवरी 2022 semester based and July 2021 annual programs, those who are eligible to take their examination in June 2022, the examination tentative date sheet अपलोड हो चुकी है, उसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी है, यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे भी है। परीक्षा की तिथि एक टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दी गई है, तो उसके अनुरूप आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, बट immediately after the completion of the exam, your next semester starts, next session starts. तो सभी छात्र जिनका की पहले वर्ष में प्रवेश हुआ था, पहले सेमेस्टर में प्रवेश हुआ था, वो लोग अपने को रजिस्टर करा लें। सब्सिक्वेंट सेमेस्टर या ईयर्स के लिए भी जो एलिजिबल हैं वो करा सकते हैं, और इसमें जून 21 फॉर एनुअल प्रोग्राम थ्रेशोल्ड लिमिट है, और जनवरी 2022 वो सेमेस्टर बेस्ड के लिए है। जनवरी में जिनका प्रवेश एनुअल प्रोग्राम आता है, चाहे बैचलर्स मास्टर्स डिग्री हो, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2023 वो होगा समटाइम्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन जिनका जनवरी 2022 में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हुआ है, उनके लिए ये समय ओपन है और दे कैन रजिस्टर। और स्टूडेंट्स को बिना किसी विशेष परेशानी के, कहीं बाहर निकले हुए, अपने पूरे प्रिकॉशंस को लेते हुए, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है विश्वविद्यालय ने, तो अपने को रजिस्टर करिए। आप अपने को रजिस्ट्रेशन डिटेल लॉक करके आप जाइए, और उसके अंदर आपका डिटेल के साथ साथ वो सारा आता जाएगा। कुछ कोर्सेज में
कुछ प्रोग्राम्स में कोर्सेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, वो फिक्स्ड हैं। कुछ में क्या इलेक्टिव्स लेने हैं, कैसे इलेक्टिव लेने हैं, उसके बारे में बताया गया है, खास करके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। कुछ मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जहाँ पे थोड़े ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने कोर्सेज का, अपने सब्जेक्ट्स का, विषय का चयन करेंगे और उसी के अनुरूप आपका जो टोटल फी रिक्वायरमेंट है वो फीस आप ऑनलाइन जमा कर देंगे। बट प्लीज रिमेंबर दैट you must go through the guidelines properly and thoroughly before you make the payment, because once made, बाद में लगता है कि ये रह गया हमारा, ये नहीं हो पाया, तो उसमें थोड़ी सी समस्या आने लगती है और स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, यूनिवर्सिटी भी थोड़ा सा इसके अंदर रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लग जाता है, एंड द रिजल्ट इज दैट द होल थिंग गेट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द लर्नर्स। तो आप लोग समय रहते हुए अपने को रजिस्टर करा लें, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल है, बहुत आसान है। एकदम से वो लिंक दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपकी मेन वेबसाइट पे, आप वहां जा करके जो पहले कर चुके हैं, जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अब थर्ड ईयर में जा रहे हैं, particularly in the bachelor's degree, they can always and immediately register themselves. लेकिन जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हैं, जिनको कि पहली बार रजिस्टर करना है, तो उनको एक तरह से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें उनका यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, और subsequently, you know, that using that user ID and password, they can always log into the GNU system, access to their own record, see कितना उनका अपडेटेड है, कितना नहीं है, और उसके अनुरूप आप अपने को रजिस्टर कर लें। जहाँ तक विषयों का सवाल है, सब्जेक्ट्स का सवाल है, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि एनुअल प्रोग्राम्स में इसके लिए थोड़ा सा विशेष सावधानी हमें देनी पड़ेगी। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में कोर्सेज आर मोर और लेस स्पेसिफाइड, उसका चयन उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज दिए गए हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग देख के कर लें। इवन बिफोर दैट, I would suggest and go a step further that the learners should go through the program guide properly before filling up the online portal. आप उसको पढ़ के अच्छे से समझ के आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद उसको रिवर्स कराना it becomes little difficult. It becomes little difficult for the learners, for the guardians, and also for the other stakeholders, those who are involved in it. They find it a little difficult. So better it is that अच्छे से जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ के समझ के आप अपने को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो दिस इज द बिगिनिंग, और जैसे जैसे रश बढ़ता जाता है स्टूडेंट का, वो लास्ट डे ड्रॉ होती जाती है, तो थोड़ा सा वो वेबसाइट पे भी, सर्वर पे भी थोड़ी परेशानी होती है। तो माय सजेशन इज दैट ऑल दोज हु आर एलिजिबल, दे मस्ट डू इट एंड दे मस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। बिना इस चीज के लिए परेशान हुए कि मेरी परीक्षा नहीं हुई है, या क्वाइट पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि भाई हमारी काउंसलिंग कैसे पूरी हो नहीं पाई है, आगे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, जो भी आपका हो गया है या जो सत्र के अनुरूप चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। So before things get delayed, before they get out of hand, best is that you must complete the requirement and register yourself. That is something which is very, very important for each of the learner. And once you are able to do it, of course, it would automatically take care. And again, I repeat that before registering, go through the program guide thoroughly, go through the program guide seriously, and see that what are the courses which have been prescribed as per that, and whether they are corresponding to those courses as available on the website, and also the ones which is available online.
चूंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है तो आपको ये सारा ऑनलाइन देखना पड़ेगा और ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ये प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी. सो दिस इज important activity, important exercise which is to be undertaken by the concerned learners. इसके अलावा अगर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई वो है, पहले सत्र का जो असाइनमेंट सबमिशन का है फॉर जून 2022, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उसकी लास्ट डेट इज ड्राइंग क्लोज 31st of May 2022. तो जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है वो असाइनमेंट सबमिट कर दें. एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आ रहा है और आपको उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर दैट. एंड देन ऑफ कोर्स एक बार आप जब उसको कर लीजिएगा देन यू कैन ऑलवेज कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ योर प्रोग्राम. और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, whatever the requirements are, you must try to fulfill so as to ensure that you are continuing your education, your preparation for the subject, your preparation for the course uninterruptedly. I know that at times it becomes very difficult, particularly many of the learners, those who are employed, they are doing job, they are doing, into some kind of profession, including the housewives. But let me tell you and share with you all that it is only during these trying times, इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं हार्ड प्रेस्ड होते हुए आपको अपनी शिक्षा जारी रखनी है और उसको आप समय रहते पूरा कर सकें, ये आपके माध्यम से ही संभव हो पाएगा. Those who are not able to do it, it will be difficult. But we always advise that it has been your conscious, bold, and of course a very praiseworthy initiative to take admission in a particular program of study. So to further continue your studies, you have to re-register. कोई भी छात्र जो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम कर रहा है वो री-रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है. कोई भी छात्र जो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा है उसको री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. किसको जरूरत है? ओनली द स्टूडेंट्स दोज हु आर परसुइंग सेलेक्ट एनुअल बेस्ड एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स, दे आर एलिजिबल. और उसको आप करेंगे समय रहते हुए और उसको डू इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. और जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे है, हम लोगों ने बहुत यूजर फ्रेंडली को, पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को बहुत यूजर फ्रेंडली बना दिया है. और आज के समय में खास करके जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं फॉर्म लेके, वी एडवाइज देम दैट प्लीज रजिस्टर ऑनलाइन. तो उसमें आप इसे करेंगे तो थिंग्स वुड ऑटोमेटिकली बी फैसिलिटेटिंग यू. एंड इन द मीनवाइल you can also simultaneously prepare for your term and examination, which is scheduled to begin sometimes towards the last week of July. You are left with little less than 2 months now. Today is 27th of May and 22nd of July, the university is planning to start the term and examination. तो उसके लिए आप लोग परीक्षा की भी तैयारी करें, री-रजिस्ट्रेशन का भी करें. और बहुत सारे छात्रों ने अपना असाइनमेंट जमा करा लिया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ छात्र रह गए हैं, if there are still some students who are left out, they can always complete their assignment submission online, जिसका डिटेल सारा हम लोगों ने आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर. तो उसके अनुरूप आप you can submit the assignments online as well. And once you're able to do that, you'll be free from at least 2-3 activities which are major activities when it comes to the preparation for the term and examination. Re-registration की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आपका असाइनमेंट सबमिशन का काम पूरा हो चुका है, आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं. और वो तभी संभव है जब हमने अपना ये पूरा
काम कर लिया है। क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 अपने माध्यम से निरंतर स्टूडेंट्स को लगातार स्टूडेंट्स को सूचित करता रहा है, करता रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है नहीं हुआ है। उसकी वेट किए बिना, अगेन आई एम सेइंग, उसकी वेट किए बिना यू कैन ऑलवेज रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट साइकिल। हमारी तरफ से सूचना, चाहे वो एसएमएस के माध्यम से हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, मे बी सम टेलीफोनिक फॉलो अप आल्सो विल ऑलवेज बी डन, बट देन वंस थिंग्स आर नो, और इसका लिंक हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी के भी वेबसाइट पे दिया गया है मेल, तो वहां देख करके आप इसको कर सकते हैं। और वो सबसे जरूरी है स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम कंप्लीशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं with first class marks, they tend to forget, कि कैसे करेंगे, क्या उसकी समय सीमा होगी, किस प्रकार से करेंगे, तो सारा उसके अंदर वो दिया गया है। तो आप लोग उसको देखें, करें और समय रहते हुए अपनी इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। और किसी को कोई अगर परेशानी है, आप हमें ईमेल भेजें, ईमेल द्वारा हम आपको मदद करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पुराने स्टूडेंट हैं, एक बार रजिस्टर कर चुके हैं, उनका पासवर्ड रीसेट करने के लिए कम्युनिकेशन आता है, मेल आता है, वो हम लोग मेल द्वारा उनको सूचित कर देते हैं और उनका रीसेट करके, सो दैट आप स्वयं अपने लेवल पे उसको हैंडल करके आप अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो यही हम लोगों को इस छोटे से सेशन में कहना था। और पुनः एक बारी बिफोर I stop, I want to advise all newly admitted learners for January 2022 session pursuing semester-based programs, BCA, MCA, and MBA, to register themselves for the next semester beginning from July 2022 now. And students, those who had registered for all annual-based programs in July 2022 have to register for registration of July 2022 session. तो आप उसको पूरा कर लें। और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप ऑनलाइन में डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो विभिन्न उसके वो रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, उनके माध्यम से आप वहाँ जाके यू कैन ऑलवेज पे द फीस एंड विल श्योरली हेल्प यू इन कंप्लीटिंग दी फीस। सो इसको करें आप। और उसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट माय कलीग्स Dr. Ekta Sharma and Dr. Fazal, if at all they have to add anything to what I have said. Dr. Fazal, आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you, sir, for giving me this opportunity to say something. Actually, I was going through the comments on the Facebook. The comments made by the students are more about the support services or the counseling classes. Particularly, they are asking, is there any group to be connected? I mean, they can connect with the WhatsApp group or not. So there are students who are trying to create some groups for students. So actually, I think basically in ODL system, as we are looking after, so we can observe that in ODL system there are no peer groups like a regular system, but the students are trying to connect with each other. So we can enlighten themselves how they can connect each other. So I would like to request to say something about it. इसमें देखिए, बहुत आपने एक अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है और ये स्टूडेंट्स का कंसर्न है। इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग ए व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम में मेरा एक सजेशन है, ऑफकोर्स अपडेट्स मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम बार बार दोहराते हैं, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग रीजनल सेंटर की वेबसाइट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें।
regularly for any update, and it will not take more than couple of minutes. जितने भी updates होंगे वो हम लोग होम पेज पे ही हम लोग अपलोड करते हैं, एंड दैट टू इन ए डिफरेंट कलर। तो उसमें आसानी होती है चीजों को समझने में और चीजों को करने में। व्हाट्सएप ग्रुप नॉर्मली क्रिएट किया जाता है कुछ स्टूडेंट के द्वारा। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जहाँ मेंटर की जरूरत है, जहाँ पे गाइड की जरूरत है, जहाँ फैसिलिटेटर की जरूरत है, वहां पे कुछ करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो वहां पे ये म्यूचुअली इग्नू अलग से नहीं क्रिएट करवाता है। या तो ये स्टडी सेंटर के माध्यम से होता है, या रीजनल सेंटर में कुछ एकेडमिक काउंसलर्स कुछ कार्यक्रमों के लिए अपने एकेडमिक सपोर्ट के बारे में चर्चा करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए वो लोग समय समय पे इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। लेकिन दैट वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट ऑल द अपडेट्स, लेट मी शेयर विद ईच वन ऑफ यू राइट नाउ वंस अगेन, for all the programs things are already uploaded on the website of the university and the regional center। आप जो भी हमारी वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करें, आप देखें उसको, और उसके हिसाब से आप एक्शन करें। मेल भेजें, उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। एट टाइम्स थोड़ा डिले हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, एंड दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। sheer number, you know, at times becomes a little difficult to manage, you know. Regional Center Delhi 3, I would like to share some basic facts here, that is among the high enrollment regional centers of the country. And the year 2021 saw, despite the pandemic and the so-called ill effects of the pandemic, highest ever enrollment registered at RC Delhi 3. More than 85,000 learners had registered for various programs, both January and July taken together. Naturally, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या भी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और मेल लिख करके भेज दिया और एक दिन दो दिन कई बार थोड़ा डिले भी हो जाता है। Have patience. It will always be responded to. Communication would always be sent to you. There are certainly थोड़ा सा डिले हो जाता है, but then have patience. थोड़ा रेगुलरली आप उसको देखिएगा तो things would always be appropriate as per the requirement of the support which is required to be given to the learners. तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप लोग लोकली जो आप लोगों का स्टडी सेंटर है वहां पे एकेडमिक काउंसलर से आप बात करके आप क्रिएट करते हैं। रीजनल सेंटर के माध्यम से कोई व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग नहीं बनाते। That is all I have to say. डॉक्टर एकता ये बोलना चाहूँगा सर, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है जी, जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल नुकसानदेह हो जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बारी बहका के इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दी ऑथेंटिक सोर्स लाइक वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेबसाइट ऑफ द रीजनल सेंटर, वो रिलायंस उनका हो जाता है कि हमें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन आई है। व्हाट्सएप ग्रुप विश्वविद्यालय कभी नहीं क्रिएट करता, ये स्टूडेंट आपस में करते हैं। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोटेंट टूल है, बट एट द सेम टाइम अगर इसको हैंडल ठीक से नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं करेंगे, तो इट एट टाइम्स क्रिएट्स सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एंड प्रॉब्लम्स एज वेल। I think this will resolve many of the issues faced by the learners. Dr. Ekta, आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, sir. My advice to all the learners is that they should remain in regular touch with their allotted study center. क्योंकि होता है क्या है, जब उनका प्रोग्राम towards the end आने लगता है तो they ask for very basic things. तो it's very important कि उनका जो initial academic support उनको मिलना है वो study center से मिलना है। So they should be in regular touch with their coordinator and academic counselors. And for all authentic information, as an advice to them, they should check all the information on the university's main website and regional centers Delhi 3's main website, ताकि जो भी उनको information मिल रही है वो सही प्लेटफॉर्म से उनके पास जा रही है,
और फ्रेंड्स से कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है, वर्ड ऑफ माउथ से मिल सकती है, बट दे शुड ऑलवेज गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम दी यूनिवर्सिटीज रिसोर्सेज। ट्रू। और जो डेडलाइंस हैं उनको अपना रेगुलरली उनको शेड्यूल चेक करते रहना चाहिए, और अकॉर्डिंगली उनकी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो प्लान करें और उनको टाइमली सबमिट करें। It will help them in smooth pursuance of their registered program. That's all from my side. Thank you. राइटली सेड, राइटली सेड। और स्टूडेंट्स को सारी जो सूचनाएं हैं विशेष करके अपडेट्स के संबंधित about the schedule of the various activities, whether it is re-registration, submission of the examination form, submission of the assignments, project, सब कुछ वो विश्वविद्यालय के मेन पेज पे, होम पेज पे उपलब्ध है। उसी को हम लोग अपने यहाँ पे लिंक बना करके एस्टैब्लिश करते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, रीजनल सेंटर पे ये सूचनाओं के साथ साथ में बहुत सारी आपके स्टडी सेंटर से संबंधित, अब स्टूडेंट को ये थोड़ा सा आइडिया रजिस्टर भी हो जाता है तो भी उनको पता नहीं चल पाता है कि हमें करना कैसे क्या है। तो जो भी स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं उनका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है। उस 10 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर के बाद में आपको एक प्रोग्राम कोड होगा। जैसे स्टूडेंट एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो MAH उनको मेंशन करना होगा, MA हिंदी कर रहे हैं तो MHI करना होगा, MA इंग्लिश कर रहे हैं तो MEG करना होगा। इस तरह से प्रोग्राम डिजिट का अपना वो सारा वो डिटेल देना है। और शेड्यूल जो कई बार है, खास करके काउंसलिंग शेड्यूल है या और रिलेटेड है, वो यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे स्टूडेंट कॉर्नर एक आप लोगों ने देखा होगा, एंड आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड। वो स्टूडेंट कॉर्नर का एक लिंक है, आप उसमें जा करके ऊपर ये दिया हुआ है, वहां जा करके फिर वो आपको बहुत सारे और हाइपर लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सारी सूचनाएं उसके अंदर दी हुई है। और वो करके आप फॉलो अप करिएगा तो आई एम श्योर मेनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स वुड बी रिजॉल्व्ड। सो दिस शुड बी फॉलोड, दिस शुड बी फॉलोड इंस्टेड ऑफ relying on at times which is not so authentic source, or relying on the so called communication through of word through mouth। थोड़ा सा उसमें वो रहता है। डॉक्टर फैजल, आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज म्यूटेड है। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी इग्नू के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ जो काउंसलिंग शेड्यूल्स हैं या लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है रीजनल सेंटर की तरफ से, वो सारी इन्फॉर्मेशन रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। रीजनल सेंटर की वेबसाइट जानने के लिए सिंपली आप गूगल पे जा करके RC इग्नू दिल्ली 3 टाइप करते हैं, वेबसाइट विल इमीडिएटली पॉप अप, तो वो वहाँ पे आ जाएगी और विजिट कर सकते हैं। सारे लर्नर्स सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। होता यही है कि दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है जो इधर उधर व्हाट्सएप पे या दूसरे ग्रुप्स पे चल रही होती हैं, स्टूडेंट उस पर रिलाई करते हैं या फिर स्टूडेंट फ़ोन करते हैं रीजनल सेंटर पर। तो रीजनल सेंटर पर फ़ोन करने से होता क्या है कि एक ही लाइन है या 2 लाइन है, उस पर लाइन बिजी रहती है, स्टूडेंट्स लगातार फ़ोन कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ फ़ोन नहीं उठता है, जबकि एक डेडिकेटेड पर्सन यहाँ पर है जो सुबह से शाम तक जो है स्टूडेंट के फ़ोन पिक करता है और जवाब देता है। तो मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूँगा कि वो कोशिश करें कि इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, या ईमेल के द्वारा अपनी क्वेरीज जो है वो भेजें, ताकि उनको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस मैं इसी के साथ में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। बस यहीं पे हम लोग एक बार पुनः इस चीज़ को दोहराते हुए कि जुलाई 2022 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। द प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड एंड all students eligible to re-register themselves can register। जुलाई 2021 या उसके पहले जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है
वो हमेशा इसके लिए एलिजिबल हैं, वो कर सकते हैं फॉर एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमकॉम हो, किसी भी विषय में एनुअल प्रोग्राम्स के लिए। और किसी वजह से सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स भी जो बीसीए हैं, एमसीए हैं, एमबीए हैं, वो भी इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और जनवरी 2022 सत्र में जिनका एडमिशन हुआ था उनके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को ये एलिजिबिलिटी है, तो दे कैन डू इट एंड आई एम श्योर दे विल बी डूइंग इट। कुछ स्टूडेंट्स क्वाइट पॉसिबल एक हमारे यहाँ कंसेप्ट जो होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन का, तो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हो सकता है ऐसे कुछ स्टूडेंट हो दोज हु वांट टू परस्यू इट, जो पहले नहीं कर पाए विभिन्न कारणों से, तो वहां पे ये मैं बताना चाहूंगा कि वो ऑटोमेटिकली री रजिस्टर नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली रजिस्टर नहीं करेगा। आपको पहले री एडमिशन लेना होगा सब्जेक्ट टू दी कंडीशन दैट आपका भी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन इज स्टिल देयर। अगर वो आप एक्सीड कर चुके हैं, वो मैक्सिमम वैलिडिटी भी खत्म कर चुके हैं, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। आपको पूरी प्रक्रिया पुनः करनी पड़ती है और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास, not because that they deliberately don't want to do it, but because of their own preoccupation. It could be because of their job, it could be their family commitments, it could be because of their other professional commitments. Many of them, they are not able to do it. So my appeal to all the learners, those who are eligible to register, that instead of waiting for anything, you have not given the examination, don't worry about it. You can always take the examination. The university has already announced and declared the schedule. You can fill the examination form and take the examination. But do not wait for the examination to get over and then register, because by the time the examination gets over, it will be sometimes in the first week or second week of September. तब तक री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, बहुत पहले उसके खत्म हो जाएगी, तो उसका आप इंतजार ना करें। असाइनमेंट की सबमिशन जो करना है वो 31 मई, एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ, 31 मई इज द लास्ट डेट, यू कैन ऑलवेज कंप्लीट इट। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको अलग से भरना है, री रजिस्ट्रेशन अलग करना है, तो ये सारी प्रक्रियाएं आप लोगों को पूरी करनी है। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स टू कम टू यू, I appeal to each one of you. You're all adult, mature learners. Rely on your own self. सारी सूचनाएं आपके पास प्रोग्राम गाइड में उपलब्ध है, हमारे वेबसाइट्स पे उपलब्ध है, चाहे वो विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट हो, चाहे वो रीजनल सेंटर की वेबसाइट हो, सब पे उपलब्ध है। और जितने भी अपडेट्स होते हैं हम अपने वेबसाइट पे देते हैं, फेसबुक पेज पे देते हैं, ट्विटर पे देते हैं। और बहुत कम ऐसे छात्र होंगे जिनको की इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 99% students I find, particularly in Delhi and NCR, they have this facility and they can always access all the details. So do not wait for the updates. Register yourself, and if at all you have any problems, please do write to us about your problems and we'll surely try to get it resolved. कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें लिखें और उसका निदान हम लोग उचित समय में जल्द से जल्द आपको करके भेजेंगे। So once again, thank you, and I wish all of you all the best for your future endeavors, and at the same time completing all your registration formalities, whether it is regarding the conduct of the so-called registration process or preparation for your examination or submission of the assignments, wherever they are left out, still they complete it and try to achieve your so-called aims and missions of your life in the best possible manner. You are the one who's going to do that. You can do it and you will do it. We are all very confident about it, not only for yourself, but for your family, for your society, for the country as a whole. And till you do it, do not feel restricted. Do it, complete it, and just go ahead with the process of the registration. So thank you all once again for this, and we look forward to your
prompt responses on this. Thank you and all the best to all of you. Thank you.